Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is plasma membrane. The plasma membrane gateway to a cell. Its mean it control all the activity inside the cells. All activities are regulated and these are regulated by a plasma membrane. This is a photograph of plasma membrane. Cell membrane is flexible and allow unicellular organism to move as you may view in a picture share with you. It's flexible in nature and allow organisms to move. It's also responsible for homeostasis, balance internal condition of the cell, also called equilibrium, maintained by plasma membrane controlling what enter and leave the cells. And it's a barrier uh, or called which control in remain in and out remain out. Function of plasma membrane: first of all, protective barrier, regulate transport in and out of the cell, selective permeable in nature, allows cell recognition, provide anchoring site for filaments of cytoskeleton, provide a binding site for enzymes, interlocking surface bind cells together, contain the cytoplasm fluid in the cells. This is a structural view of the cell membrane. Membrane components includes phospholipids, cholesterols, proteins, glycolysis. These are all integral components of plasma membrane. Phospholipids, if we discuss about it, contain two fatty acid chains that are non-polar, head is polar and contain a phosphate group and glycerols. In detail, we discuss about the phospholipids in lipids topic. Fluid mosaic model, fluid because individual phospholipids and proteins can move side to side with the layer like it's a liquid. That's why it's known as a fluid mosaic mean because the pattern produced by scattered protein molecules when the membrane is viewed from the above. It develops a scattered pattern. That's why it's known as the structure of plasma membrane proposed by fluid mosaic model is accepted. Cell membrane includes polar head or hydrophilic mean water loving and non-polar tail hydrophobic water fearing make membrane selective in nature what across it मीन कि प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर है और ये जो इसके अंदर जो दो डिफरेंट ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही हैं जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है जबकि जो हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है वो नॉन पोलर इन नेचर. अब इसको ज़रा अगर ओवरव्यू करें तो जो पोलर है हाइड्रोफिलिक हेड है मीन की जो वाटर लविंग पोर्शन है वो उसको आप व्यू करेंगे जबकि जो सेंट्रल जो इसके अंदर जो पोर्शन की जो लेयर्स हैं नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड जो इसके अंदर फैटी एसिड्स की होंगे वो इसके अंदर टेल डिवेल्प करेंगे और जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे. अब सेल मेम्ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो एक कंपोनेंट के अंदर जो फास्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर पोलर हेड डेवलप कर रहे हैं जबकि जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो भी इसके साथ प्रेजेंस हैं और ये इसका दोनों व्यूज जबकि जो बी स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपकी ओवरऑल जो लेटरल व्यू दिया गया द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स कॉल्ड द लिपिड्स बाइलेयर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स पास इजीली हाइड्रोफिलिक डोनट जो क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक जितने भी मालिक्यूल्स होंगे इसमें से इजीली पास ऑन कर जाएंगे जबकि जो हाइड्रोफोबिक के नेचर होंगे इसको इजीली पास ऑन नहीं करेंगे. और जनरल जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से जो मॉडल प्रपोज है वो ये लिपिड्स की बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं. अब सॉल्युबिलिटी के हवाले से अगर हम इसको डिस्कस करें तो मटेरियल दैट आर सॉल्युबल इन लिपिड्स कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इजीली कि जो सब्सटेंसेस लिपिड्स के अंदर इजीली सॉल्युबल होंगे वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली अक्रॉस कर जाएंगे. सेमी परमिएबल अगर हम नेचर्स के हवाले से डिस्कस करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्जर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू इजीली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे और जो लार्जर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर इंक्लूड्स हैं ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है वो इसको इजीली अक्रॉस कर जाएंगे. Ions, hydrophilic molecules larger than water and larger molecules such as proteins do not move through the membranes on their own. Itself इनकी movements नहीं होगी बल्कि इनकी जो movements होंगी इन substances की वो regulated होंगी. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा इसके अंदर हम इसकी मूवमेंट्स के हवाले से जो डिस्कस करना है सिंपल जो डिफ्यूजन जिसके अंदर इन्वॉल्व है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा रिक्वायर्ड नो एनर्जी मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ
हाई टू लो कंसनट्रेशन की। डिफ्यूजन के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एरिया ऑफ हाई टू लो कंसनट्रेशन की तरफ। इससे नेक्स्ट वन डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस विच मीन्स टू एनर्जी इज यूज्ड टू मेक द मॉलिक्यूल्स मूव, दे हैव अ नेचुरल काइनेटिक एनर्जी। कि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्व होती हैं। आउटसाइड सर्कल देखिएगा कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, जबकि जो इससे नेक्स्ट वन जो स्ट्रक्चर्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स की जो सिंपल्स मूवमेंट है इसको डिफ्यूजन कंसिडर करते हैं। अब डिफ्यूजन आप अगर लिक्विड को देखें तो सिंपल हम किसी बेकर के अंदर अगर हम को डाई है ड्रॉपर के साथ हम उसके अंदर डाई को ड्रॉप करते हैं तो डिफ्यूजन जब स्टार्ट होती है और फिर देखते हैं कि लास्ट जो थर्ड वन स्टेज है सी है, अगर आप उसको देखो तो डाई इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड के थ्रू आउट जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर्स के अंदर पार्टिकल्स डिफ्यूज कर जाएंगे। और इसी ही को आपको नीचे शेयर किया गया है वंस अगेन जो बेकर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, मॉलिक्यूल्स इक्वली क्या हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पैसिवली। डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू अ मेम्ब्रेन को अगर हम इसका डिस्कस करें तो इसके अंदर जो डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है, डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अभी देखिएगा कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ इनसाइड मूव करेंगे, अक्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन इसके अंदर जो मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, और जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन होगी उसको हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कंसीडर करते हैं। सोल्यूट्स मूव ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो, मीन के अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इसके अंदर मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब ऑस्मोसिस के अंदर देखिएगा इसके अंदर भी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल लो सोल्यूट टू लोअर वाटर पोटेंशियल हाई सोल्यूट। अब ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं जहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल मीन कि जिस साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो होंगी उस साइड से मूव करिएगा वाटर जिस साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होंगी। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये रेगुलेटेड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इसके अंदर अक्रॉस इन्वॉल्व होती है, इसको हम ऑस्मोसिस कंसीडर करते हैं। इससे नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ये सिंपल देखिएगा कि इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको वंस अगेन ओवरव्यू करें तो सिंपल मूवमेंट्स क्या हैं इस डिफ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसको हमने प्रीवियस भी देखा है कि जैसे वो सिंपल अगर हम लिक्विड को ड्रॉप करते हैं तो वो थ्रू आउट द बीकर को क्या कर जाता है डिफ्यूज कर जाता है। अब इसके अंदर हाई वाटर पोटेंशियल लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, जबकि लो वाटर पोटेंशियल और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। और हमने इसके अंदर कंसीडर किया है, ये डिस्कस किया है कि मूवमेंट्स किस साइज के अंदर होंगी कि जिस साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होंगी। एक्वापोरिन्स वाटर चैनल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं प्रोटीन पोज यूज ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, कि वो स्ट्रक्चर्स हैं एक्वापोरिन्स, वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं कि जिसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, अभी देखिएगा कि इसके अंदर दो तरह की कंडीशंस आपके साथ शेयर की गई हैं कि 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है और 90% वाटर है इन्वायरमेंट के अंदर, और यही जो कंसनट्रेशन है वो सेल के अंदर है, मीन कि 10% सोडियम क्लोराइड इनसाइड द साइटोसोल है और 90% इसके अंदर वाटर है। अब यहाँ से पे ये देखिएगा कि इन एंड आउट यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन आपने यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे वाटर की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी। जितना जो इन्वायरमेंट के अंदर कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, यही ये साइटोसोल के अंदर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन जो स्लाइड है इसके अंदर ये देखिएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन है, मीन कि दोनों साइड्स के अंदर मीन एनवायरनमेंट के अंदर भी और सेल के अंदर दोनों के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन डिफर कर रही है। अब जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 10% है जबकि वाटर 90% है, जबकि जो साइटोसोल है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 20% है जबकि वाटर की कंसंट्रेशन 80% है। तो अभी देखिएगा कि जो एरो हेड इसके अंदर इंडिकेट किया गया है कि वाटर इसके अंदर क्या करेगा टुवर्ड्स द सेल्स मूव करेगा। अभी देखिएगा हाइपरटोनिक जो कंडीशन है इसके अंदर अगर देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड इन्वायरमेंट के अंदर 15% है जबकि जो वाटर है इन्वायरमेंट के अंदर वो 85% है। और यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड इन साइड है वो 5% है जबकि जो 95% है वो इन साइड था। जो येलो आपको स्ट्रक्चर लेवल आ रही है इसके हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, इनसे मुराद ये वाटर है, तो यहाँ पे वाटर की जो मूवमेंट्स होंगी वो आउटसाइड्स होंगी। अब इसके हवाले से वही जो हमने डिस्कस किया पोर्शन कि अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू द साइटोसोल देन
जो मूवमेंट्स ऑफ वाटर हैं वो इनटू द सेल्स होंगी। सेकंड स्टेप के ऊपर देखिएगा कि अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन हाइपोटोनिक in नेचर है, हाइपोटोनिक in नेचर होगा तो सेल्स मूव करेगा आउट ऑफ द सेल्स। और थर्ड वन है एक्सटर्नल सॉल्यूशंस के अंदर अगर आइसोटोनिक कंडीशंस होंगी तो वाटर की जो मूवमेंट्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होंगी, क्योंकि बैलेंस्ड यहाँ पे कंडीशंस होंगी। वंस अगेन उसी ही कंसेप्ट को आपके साथ रिवाइज किया जा रहा है कि आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है उसके अंदर नो नेट मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, जबकि जो हाइपोटोनिक जो हैं वहाँ पे मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो आपको मेंशन की गई है, जबकि जो हाइपरटोनिक जो कंडीशंस है वहाँ पे भी। लेकिन ये देखिएगा कि हाइपोटोनिक सिचुएशन के अंदर साइटोलाइसिस हो रही है, जबकि हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो रही है। अब साइटोलाइसिस क्या है एंड प्लाज्मोलाइसिस क्या है, कि अगर आप ये देखिएगा कि रेड ब्लड सेल्स जो टॉप आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर सेल प्लेस्ड इन डिस्टल वाटर की, अगर हम सेल को डिस्टल वाटर के अंदर इनको प्लेस करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, तो ये देखिएगा कि सेल स्वेल एंड ब्रेस्ट, और जो सेल का स्वेल होकर ब्रेस्ट होना ये क्या है, साइटोलाइसिस है। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा कि सेल प्लेस इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन की, उन ही सेल्स को अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर उनको अगर हम रखते हैं तो सेल श्रिंक कर जाएंगे और श्वेल हो जाएंगे, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कंसीडर करते हैं। अब ये ऑस्मोसिस इन रेड ब्लड सेल्स हैं तीनों कंडीशंस के अंदर के आइसोटोनिक है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइज है सेल, हाइपोटोनिक के अंदर देखिएगा कि सेल स्वेल हुआ है, जबकि जो हाइपरटोनिक कंडीशंस है वहाँ पे देखिएगा कि सेल्स क्या हो रहा है, डीनेचर हो रहा है। वॉट हैपन टू ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स है हमारे पास, अगर सोल्यूट की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हाई होगी तो उस वक्त ये देखिएगा कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या वेरिएशंस आ रही हैं, उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो रही है। आइसोटोनिक है तो उसके अंदर नो डिफरेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जबकि जो हाइपोटोनिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे वो सेल्स क्या कर रहे हैं, उसने नॉर्मलाइज से क्या किया हुआ है, स्वेल किया हुआ है। ये आपके से पूछा गया क्वेश्चन है कि आपने जो प्रीवियस दो जो स्ट्रक्चर्स देखी हैं इसमें रेड ब्लड सेल्स के हवाले से कि कौन सी स्टेज है, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं A B C, और सेम लाइक ये प्लांट सेल्स है जिसको D E F लेबल किया गया है कि इनके अंदर ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उनका आप नाम मेंशन करेंगे ड्रॉ करके अपने पास, और इसके अंदर ये कौन सी वेरिएशंस इन्वॉल्व हो रही हैं।